ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MCQs ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 5 ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲਿਪਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ A to Z ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। PDFs ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MCQs ਨੇ, ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੇਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਰਾਈਟ ਔਨ 10th ਕਲਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਦ ਐਕਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਨ ਦ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ y ਐਕਸਿਸ ਔਰ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x1 0 ਔਰ x2 0 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 0 y1 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 0 y2 ਹੈ ਤਾਂ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ y2 ਮਾਈਨਸ y1। ਈਜ਼ੀ, ਸਿੰਪਲ, ਸੌਰਟਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਥ ਆਫ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2g² ਮਾਈਨਸ c ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, x² ਪਲਸ y² ਪਲਸ 2gx ਪਲਸ 2fy ਪਲਸ c। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ y 0 ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2f² ਮਾਈਨਸ c। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਇਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਥ ਆਫ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਕਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਲ ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 0 ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਰ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 0 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 0 ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 0 ਦੇ, ਔਰ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, ਸੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੋਰ ਦ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਫ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਥ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਟਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਜਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ 3 ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਵੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2gx ਪਲੱਸ 2fy ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ax ਪਲੱਸ by ਪਲੱਸ ਸੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਚਲੋ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਦੇ ਔਰ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਐਕਸ ਦੀਆਂ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2
पॉइंट्स आ जाते हैं सॉल्व करन तो बाद, क्योंकि ये पॉसीबल है, क्योंकि थोड़े कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चीज़ पॉसीबल हैगी है। 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो तुसी कहोगे कि यही लाइन जो है वो की है इंटरसैक्ट करती है किन्ने पॉइंट्स के उपर, 2 कॉमन पॉइंट्स के उपर लाइन सर्कल नूं इंटरसैक्ट करती हैगी है। और जो तुसी सॉल्व करते हो, सॉल्व करन तो बाद तुहाडे कोल सिर्फ एक ही पॉइंट निकलता है, दूसरा पॉइंट ही नहीं निकलता, सिर्फ एक पॉइंट निकलता है, ओनली एक्स और वाई कोई भी हो सकता है वो। तो इन दैट केस तुसी कहोगे कि सर्कल नूं की कर रही है लाइन एक ही पॉइंट के उपर कट कर रही है या टच कर रही है। और द थर्ड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो देयर इज़ नो कंटैक्ट, जो सर्कल ते लाइन का आपस कोई कनैक्ट ही नहीं है, कंटैक्ट ही नहीं है, तो इन दैट केस तुसी कहोगे कि कोई पॉइंट ही नहीं निकलिया, तुसी कहोगे कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलिया। इन दैट वे तुसी कह सकते हो कि नो कॉमन पॉइंट, दोनों के विचों कोई भी मेरे को वैल्यू ही नहीं निकली, तो इसका मतलब दोनों के विच कोई भी रिलेशन नहीं हैगा। हुण तुसी सोचोगे वेट एवें किवें हो सकता है, सानू किवें पता लगूगा कि 0 वैल्यू आई है, जो किवें निकलूगी, थोड़ा बहुत सानू करके दस दो। तो थानू डिस्क्रिमिनेट कढ़ना तो आंदा ही है। जो तुहाडे कोल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो जो तुहाडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि थानू पता है सर्कल की जिहड़ी इक्वेशन है वो एक्स फॉर्मेट दे विच है ना, एक्स स्क्वेयर दे विच है, तो उत्थे तुहाडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच आपां एक डिस्क्रिमिनेंट कढ़दे हुंदे सी, विच इज़ v स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यह जिहड़ा डिस्क्रिमिनेंट है ये तुहानू दसूगा कि तुहाडे कोल किन्ने सोल्यूशंस आ रहे हैं या किन्नियां वैल्यूज़ आ रही ने। किवें, जेकर तो तुहाडे कोल डिस्क्रिमिनेंट 0 तो वड्डा है तो तुसी कहोगे कि हाँ जी 0 तो वड्डा आया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम नाल मेरे को 2 आंसरस आ जाएंगे। तो मतलब मेरे को की है लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स के उपर की कर रही है, सर्कल नूं कट कर रही है। पर जेकर मेरे को डिस्क्रिमिनेंट ही 0 के इक्वल आ गया, फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया इट मीनस टू से तुहाडे कोले एक सोल्यूशन होएगा, 1 सोल्यूशन होएगा। और जेकर तुहाडे कोल डिस्क्रिमिनेंट 0 तो छोटा आ गया, मतलब इमेजनरी, याद करो 10th क्लास के पढ़ते होंगे सी कि इत्थे तां जी नो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ जाऊगा, नो सोल्यूशन आ जाऊगा, इदा का कोई क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। उम्मीद है यह क्लीयर होगा। तीनों चीज़ां बहुत ज़्यादा ईजी ने, सौखियां ने। जो एग्जाम्पल्स करांगे तुसीं खुद कहोगे कि हाँ जी समझ आया, बहुत ज़्यादा सौखा काम है ना। तो कोशिश करियो तुसीं भी एग्जाम्पल्स नूं करन दी, कोई भी रैंडम जी एग्जाम्पल्स ले लियो, आराम नाल तुहाडे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगे चलते हैं। अगे अगर आप गल करिए तो इक्वेशन अगर आपने कढ़नी है, एक बहुत इंपोर्टेंट जी चीज़ है, अच्छे खासे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जिन्होंने आप बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। हुण टेंजेंट का तो सबनों पता है कि टेंजेंट की होंगी है, पर हुण आपने कढ़नी की है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कढ़नी है। द रीजन क्योंकि जी टेंजेंट की लेंथ है, आ टेंजेंट पहली गल तो होंगी की है, दिस इज़ एंड इनू आप की बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। वो अगर आप लेंथ कढ़नी है तो किवें कढ़ांगे, हुण कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही। देखो इत्थे कोई ना कोई पॉइंट तो हैगा ही है जिहदे विचों तुहाडी जिहड़ी टेंजेंट है वो पास होंदी है, जो सर्कल की भी होंदी है और लाइन की भी होंदी है। हुण सर्कल की इक्वेशन मैनूं की दित्ती होएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c। ये मेरे को सर्कल की इक्वेशन होया करेगी। और मैनू हो सकता है कि सर्कल की इक्वेशन सेंटर फॉर्म के दिती होवे, पर मैनू एक पॉइंट जरूर दिता होएगा। और क्या होएगा कि मैनू ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दसो जी कितनी होने वाली है, जो कि यह पॉइंट सॉरी ये पॉइंट तो कोई एक्स वाई होगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, कोई बाहर कोई पॉइंट होगा दैट इज़ एक्स और वाई, तो जो तो मैंने इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट करनी है। सिंपल एंड सूटेड सा काम है। पॉइंट नूं इहदे विच पुट कर दो, ठीक है जी। पॉइंट गिवन सीगा, उस पॉइंट नूं इहदे विच पुट करता, पॉइंट नूं इहदे विच पुट किया तो मेरे को जो भी इक्वेशन बनूगी उस इक्वेशन नूं आपां एक नवां नाम दे देने आ, जिन्हों आप बोलते हैं S1। हाँ जी, इनू आप S1 का नाम दे देने आ। मैंने की किया S1 कढ़ लिया और S1 का कढ़न तो बाद उसका रूट करता। S1 रूट मेरे को की होएगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट होएगा। बहुत सिंपल तो सौखा जा काम है। हुण तुसीं कहोगे एक मिनट एग्जाम्पल दस दो प्लीज़, तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल दस देने कि मतलब जेकर मेरे को यह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, सॉरी सर्कल की इक्वेशन है। हाँ जी, जेकर यह मेरे को एक सर्कल की इक्वेशन है और जिस दे विच मैनू प्रॉपर अच्छा इत्थे 16 कर लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है और मैनू कोई भी पॉइंट दिता होया दैट इज़ 2 3। मैनू कहते इस सर्कल तो इस पॉइंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कड्डो जी कितनी आएगी, तो तुसीं कहोगे जी कुछ नहीं, ये पॉइंट नूं पुट करो। मैं क्या ठीक है, पॉइंट आप पुट कर देने दैट इज़ 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 16, 4 प्लस 9 माइनस 16 विच इज़ इक्वल्स टू 0। और 0 का रूट कितना दैन आंसर इज़ ऑल्सो 0। तो मतलब यह पॉइंट सर्कल के उपर ही लाई करता है किते ना किते, और इसका जो डिस्टेंस ऑफ मतलब की है 0 होएगा क्योंकि सर्कल के उपर ही आ गया। ठीक है, तो समझ रहे हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कढ़नी किवें, बहुत ईजी काम है। चलो जी, इनू अगर जो तुसीं वैल्यू पॉइंट नूं इहदे विच पुट कर देने हो ना, आप S1 दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है,
हाँ जी, अगे चलते हैं। अगे आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट कड्ढण तो बाद अगर तुहानू सर्कल तो ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कड्ढनी पै जे फिर असीं की करांगे। ये सारे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स ने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ जी, हुण तुसीं की कड्ढनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट तो कड्ढ ली, वेरी गुड, शाबाश। बट हुण आपां कड्ढनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किवें निकलेगी? हुण तुहानू एक सर्कल दिता होगा, दिस इज यूर सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये तुहानू सर्कल दिता होया और सर्कल की इक्वेशन कड्ढण तो बाद तुहानू एक पॉइंट भी दिता होएगा, दैट पॉइंट इज x1 y1। हुण ये मेरे को सर्कल है, इत्थे कोई ना कोई पॉइंट है दैट इज x1 y1। हुण यही वो पॉइंट है जित्थों किते ना किते तुहाडी टेंजेंट की हो रही है, लंघ रही है, वो वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हुण इहदा मतलब की हो गया, इहदे विच जो तुसीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कड्ढनी है इट मीनस तुसीं रखना है t इज इक्वल्स टू 0। हुण तुसीं कहोगे वट इज़ टी, तो टी बहुत ही सौखा जिहा काम है। जिमें S1 आप पॉइंट पुट कर देने उवें ही टी हुंदा। किवें कड्ढना है जी, तुसीं ध्यान नाल देखो, देखो इत्थे एक्स स्क्वेयर है, दस रही हाँ, एक एक्स दे विच वैल्यू पुट कर दो, एक एक्स दे विच ना करो, थोड़ा जिहा पता लग जूगा, ठीक है। तो इत्थे एक्स स्क्वेयर है, एक एक्स मैंने एज इट इज़ रख लिया, एक दे विच मैंने वैल्यू पुट करती। जस्ट याद रखने का तरीका है। हुण इहनूं एवें ना कहियो कि पता नहीं की कही जांदे ने मैडम, बट ये जस्ट तुहानूं याद रखवाउण दा तरीका है कि एक पॉइंट दे विच वैल्यू पुट कर दो और एक दे विच ना करो, ठीक है। सो वाई स्क्वेयर सीगा, एक दे विच मैंने वैल्यू पुट नहीं की तो दूसरे दे विच करती। सिमिलरली 2g, हुण तुसीं सोचोगे मैम ये तो एक्स है, तो हुण की मैं एक्स नूं एवें लिख सकदी हाँ एक्स प्लस एक्स बाई 2? यस और नो दसो, लिख सकती हैं या नहीं लिख सकती हाँ? तो सिमिलरली मैंने एक एक्स दे विच वैल्यू पुट की, दूसरे दे विच नहीं की बाई 2। एंड सिमिलरली एफ दे विच भी मैंने एक वाई दे विच वैल्यू पुट करती, दूसरे दे विच नहीं की बाई 2 प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। देखो बहुत सही तरीका है याद रखने का कि हाफ दे विच वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाफ दे विच नहीं कर रहे, इहदे नाल तुसीं कदे भी नहीं भुल्लोगे, ठीक है। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तुसीं ये कड्ढोगे तुहाडे कोल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाया करेगी हमेशा ऑटोमैटिकली। हुण अगर आपां गल करिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सी, बट वट अबाउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? हुण तुसीं सोचोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कड्ढना की औखा है? तुहाडे कोल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, तुसीं कहो हाँ जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। हुण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक लाइन की इक्वेशन होगी, कोई भी हो सकती है, लाइक ax प्लस by इज़ इक्वल्स टू c। हुण तुहानूं पता है कि जिहड़ी इहदी स्लोप है वो स्लोप की है माइनस ए ओवर बी है, ठीक है। हुण स्लोप नूं जदों मैं उल्टा देनी हाँ और उसके मूहरे माइनस लगा देनी हाँ, तो जिहड़ी नवीं स्लोप मेरे को बनती है वो किहदी स्लोप बनती है जी? नॉर्मल की स्लोप बनती है, यस और नो? हुण नॉर्मल की स्लोप तुहाडे कोल हैगी है, पॉइंट तुहाडे कोल हैगा है, तो तुसीं आराम नाल नवीं इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते। लाइक तुसीं ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते कि मेरे को आ गया माइनस बी एक्स प्लस ए वाई इज़ इक्वल्स टू सी। सो ये तुहाडे कोल नवीं आ गई, समझ रहे हो? तो मतलब जो तुहाडे कोल टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, थोड़ा मेन फोकस होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आफ्टर दैट तुहानूं अच्छे तरीके नाल पता होना चाहिए कि स्लोप कड्ढो, -1 दे नाल उहदा रेसिप्रोकल कर दो और उस तो बाद उस दे विच इक्वेशन कढ़ दो तो तुहाडा आंसर आ जाऊगा, है ना। तो हुण एक एग्जाम्पल कर लैंदे आ। मतलब मैनूं मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज़ 2x स्क्वेयर, नॉट एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। और मैनू कोई पॉइंट दिता होया दैट इज़ 1 एंड -2। हुण मैनू कहते हैं जिहड़ा ये पॉइंट है, इस पॉइंट तुसीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कड्ढनी है। रिपीट कर रही हूँ दोबारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कड्ढनी है। सो नॉर्मल की इक्वेशन किवें निकलेगी? पहला टेंजेंट की कढ़ लैंदे आ। टेंजेंट की इक्वेशन किवें कड्ढनी सी? ध्यान नाल x x1 y y1 हर एक जगह के उपर की हो रहा है, हाफ दे विच पॉइंट पुट हो रहा और हाफ दे विच पॉइंट नहीं पुट हो रहा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुसी भुल्लो ना, ठीक है जी। और प्लस -3 आ गया इज इक्वल्स टू 0। चलो हुण पॉइंट नूं पुट कर देने आ, तो मेरे को कितना आ गया x - 2y। और जो ये आपां पुट करांगे तो मेरे को आ जाएगा 3, दैट इज़ x + 1 एंड ओके +2 दैट इज़ y - 2 -3 इज़ इक्वल्स टू 0। चलो इनू सॉल्व कर लो, x 3x तो मेरे को कितना आ गया जी 4x आ गया, -2y एंड +2y खत्म हो जाएंगे। और उस तो बाद मेरे को आ जाता है +3 -4 -3। तो आई थॉट मेरे को आ गया x इज़ इक्वल्स टू 1 या x - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ये मेरे को इक्वेशन आ गई है। हुण जो इक्वेशन आ गई है तो वो तो मैं की कढ़ सकती हाँ, आराम नाल नॉर्मल इक्वेशन कढ़ सकती हाँ। तो पहला तो स्लोप कढ़ लेने x - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ये स्लोप मेरे को की आएगी 1 आएगी, नो डाउट। तुसीं इहदा डेरीवेटिव करो तो भी स्लोप 1 आएगी। कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y लगाओ तो भी वही आएगी।
ठीक है। मैं इत्थे सुजैसट करदी हाँ डेरीवेटिव कर दो, स्लोप निकल जाती है ना। तो चलो ठीक है, फिर स्लोप 1 आ गई, उल्टा के माइनस कर दो, -1/1, ठीक है। तो पॉइंट लगा लो तो थोड़े को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। ईजी, सिंपल, सॉर्टेड। आई होप ये कोई भी कितने भी डाउट नहीं हैगा। स्टिल कितने भी डाउट है तो तुसीं आराम नाल पुछ सकते हो। तो चलो हुण इहदी इक्वेशन भी कढ लैंदे आ। पॉइंट तुहानूं की दिता होया 1 and -2, स्लोप तुहाडे कोल की है -1। चलो जी, y माइनस y1 मतलब y +2 हो गया, एंड स्लोप x माइनस x1 ठीक है। हुण जिथे तुहानूं पता ही है x माइनस x1 बिल्कुल, और इत्थे तुहाडे एंड इतों तुसीं आराम नाल x की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। तो तुहाडे कोल सिंपल जी इक्वेशन आ जाती है, दैट इज़ y + 2 = 0। सिंपल एंड शॉर्टर। तो ये तुहाडा सीगा क्वेश्चन, ठीक है। हुण अगे चलते हैं जी, नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट करन तो बाद हुण आपां ये देख लैंदे आ, काफ़ी इंपोर्टेंट जो टॉपिक है कि तुहाडे कोल किहड़े केसिस बनते हैं जिहदे विच तुसीं स्लोप कढ सकते हो कॉमन टेंजेंट्स तो, सॉरी स्लोप नहीं टेंजेंट्स कढ सकते हो, ठीक है। हुण अगर मैं तुहानूं सब तो पहला केस दस रही हाँ जिहदे विच तुहाडे कोल 2 सर्कल ने, तुहाडे कोल 2 सर्कल दिते हुए ने, इन्हां 2 सर्कल्स दे विच अगर ये 2 सर्कल्स एक दूसरे तो दूर ने, ध्यान नाल देखो, ये 2 सर्कल्स एक दूसरे तो दूर ने, तो इन्हां दे विच किन्नियां कॉमन टेंजेंट्स तुसीं बना सकते हो। तो तुसीं कहोगे मैम एक तो ये वाली टेंजेंट बन गई जो किते ना किते दोनों नूं टच करके जा रही है, सिमिलरली एक ये वाली टेंजेंट बन जाएगी, 2 टेंजेंट्स तो यही हो गई। और मैम जेकर असीं एक आ वाली टेंजेंट बना दी है तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही हो जाता है, तो जेकर एक सिमिलरली इधरों जाती है तो ये भी एक टेंजेंट हो जाती है। तो हुण मैंने वो सारियां टेंजेंट्स लैनियां ने जो दोनों पॉइंट सर्कल्स नूं एक पॉइंट के उपर टच करदियां होणगियां। कॉमन टेंजेंट्स की गल करते हैं आपां। तो जो तुहानूं 2 सर्कल दे दिते तो हुण ओबवियसली इन्हां दे 2 सेंटर भी होणगे और इन्हां दे 2 रेडियस भी होणगे। ये मेरे कोल कोई रेडियस 1 है और ये मेरे कोल कोई रेडियस 2 है, एग्री हो सारे। और इन्हां दोनों दे विच कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर हो रहा होएगा, ठीक है जी। इनू मैं ए बी का नाम दे देनी है, इनू मैं ए का नाम दे देनी है। तो प्रॉपर तुहाडे कोल हुण डायग्राम आ गई है। तो सब तो पहला तुहानूं गिवन की होया करेगा, मेरे कोल गिवन होया करेगा एक सर्कल की इक्वेशन दैट इज़ x1² y1² 2gx1 एंड 2f(y1) + c। ये तो एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मेरे को 2 सर्कल्स होंगे तो दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी होया करेगी, दैट इज़ 2gx2 + 2f(y2), कुछ भी हो सकती है, ये मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, दैट इज़ = 0। हुण आपां गल कर लैंदे आ कि मैनूं किवें पता लगूगा कि जिहड़ियां मेरियां टेंजेंट्स ने वो 4 बन रही ने, 4 टेंजेंट्स बन रही ने, तो मैनूं किवें पता लगूगा? तो पता लग जूगा जी, बिल्कुल लग जूगा। जो तुसीं देख पा रहे हो कि मैंने रेडियस 1 का तो रेडियस 2 का ऐड किया, मैंने दोनों रेडियस का ऐड करता। हुण तुसीं रेडियस आराम नाल कढ सकते हो, इत्थों भी तुसीं रेडियस कढ सकते हो और इत्थों भी तुसीं रेडियस कढ सकते हो। बोलो कढ सकते हो कि नहीं कढ सकते हो, है ना। तो मैंने दोनों रेडियस का ऐड किया और मैंने देखा कि जो मैंने ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस कढ़िया, हुण दोनों सेंटर तुहानूं दिते हुए ने, जे नहीं दिते हुए तो तुसीं इत्थों सेंटर भी कढ सकते हो। इत्थों मैंने x1 y1 सेंटर कढ लिया, इत्थे मैंने x2 y2 सेंटर कढ लिया। तो सेंटर कढ़ना भी मैनूं आंदा है, ये मेरे को x1 y1 होएगा और ये मेरे को x2 y2 होएगा। एग्री हो सारे, ठीक है। इत्थे r2 कर लो, इत्थे r1 कर लो, ठीक है। तो मैंने ए बी का डिस्टेंस भी कढ लिया। हुण जो मैंने देखा कि जिहड़ा ए बी का डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के ऐड तो भी ज़्यादा है, मतलब दोनों के रेडियस के ऐड तो भी कई गुना ज़्यादा, कई गुना नहीं मतलब कुछ का अमाउंट ज़्यादा हैगी है जिहड़ा मेरा डिस्टेंस है। तो इट मीनस जिहड़े 2 सर्कल्स ने उन्हां दे विच कोई ना कोई डिस्टेंस तो हैगा, ये 2 सर्कल्स आपस दे विच दूर ने। और अगर 2 सर्कल्स आपस दे विच दूर ने तो तुहाडे कोल किन्नियां टेंजेंट्स बननगियां, नंबर ऑफ टेंजेंट्स किन्नियां होणगियां जी, 4 नंबर ऑफ टेंजेंट्स बननगे तुहाडे कोले। समझ रहे हो? तो तुसीं कहण दा मतलब की चेक करना, दोनों के रेडियस का एडिशन शुड बी मोर दैन कि उन्होंने दे सेंटर के डिफरेंस तो ज़्यादा होवे। अगर कन्फ्यूजन होवे मैम याद नहीं रहना तो डायग्राम तुहाडे वास्ते ही बनाई है, तुसीं डायग्राम नूं नाल नाल बना लो। सैकेंड कंडीशन तुहाडे कोल किहड़ी बन जाती है? लो जी हुण आपां गल कर लैंदे आ सैकेंड कंडीशन की। जदों मेरे कोल दोनों सर्कल्स इस तरीके नाल बने हुए हैं, ठीक है, दोनों सर्कल्स किते ना किते आपस दे विच की कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। हुण इत्थे मेरे कोल एक रेडियस है और यह मेरे कोल दूसरा रेडियस है, ठीक है। हुण ये मेरे कोल R1 है ए पॉइंट और ये मेरे को बी पॉइंट है, तो यह मेरे को सैकेंड रेडियस है दैट इज़ R2। हुण सर्कल्स मेरे को 2 ने, तो सब तो पहली गल तो आप यह कर लैंदे भी ये कॉमन टेंजेंट्स किन्नियां बन सकदियां ने। तुसीं कहोगे देखो उपर वाली टेंजेंट तो उवें ही बन जूगी,
कोई डाउट नहीं है। नीचे वाली टेंजेंट भी उवें बन जूगी, 2 टेंजेंट्स तो मैडम असीं बनातीआं ते तीसरी टेंजेंट देखो सेंटर दे विचों लंघदी हुई भी बन सकदी है। हुण तुसीं सोचो कि एवें बन जूगी तो एवें नहीं बन सकदी, कट हो जाणीआं उहने, ठीक है। तो 3 टेंजेंट्स बन गईआं, तो मतलब जदों 2 सर्कल्स आपस दे विच टच हो रहे ने तो उहदे विच नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनियां होणगीआं, 3 होणगीआं। पर हुण असीं इन्हां नूं दस्सांगे किवें कि तुहाडे कोल 3 नंबर ऑफ टेंजेंट्स ने, सानूं किवें पता लगूगा? पता लग जूगा, तुसीं बहुत स्मार्ट हो। किवें? पहला तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन दी होएगी तुहानूं, दैट इज़ x1 स्केयर y1 स्केयर 2gx1 एंड 2f(y1) प्लस c दैट इज़ इक्वल्स टू 0। इत्थों मैं आराम नाल फर्स्ट रेडियस भी कढ सकदी हाँ और मैं इत्थों आराम नाल फर्स्ट सेंटर भी कढ सकदी हाँ। जो मेरे को सेकेंड सर्कल होएगा, दिस इज़ माई सेकेंड सर्कल, x स्केयर y स्केयर 2gx2 2f(y2) प्लस c। तो इस केस के विच मैं देख पा रही हाँ कि इत्थों मेरे को सेकेंड रेडियस भी निकल जाएगा और इत्थों मेरे को सेकेंड सर्कल भी सेंटर भी निकल जाएगा। तो इत्थों मैंने फर्स्ट सेंटर भी कढ लिया और सेकेंड सेंटर भी कढ लिया। तो सारा कुछ फाइंड आउट करने तो बाद मैं देख रही हाँ कि जो मैं पहले रेडियस ते दूसरे रेडियस का ऐड करा, पहले रेडियस ते दूसरे रेडियस का ऐड करा, वो मेरे को ए बी दे डिस्टेंस दे इक्वल आ जाऊगा। ध्यान नाल देखो इत्थे की हो रहा है, जो मैं दोनों रेडियस का ऐड कर रही हाँ वो मेरे को की आ रहा है, मेरे को जोड़े सेंटर के डिस्टेंस ने उन्होंने इक्वल आ रहा है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए ने तो कोई गैप है नहीं विच। अगर नहीं हैगा इट मीनस किते ना किते तुहाडे कोल डिस्टेंस दोनों का की हो जाता है, सेम हो जाता है। एग्री हो सारे? तो मतलब जो तुहाडे कोल डिस्टेंस और रेडियस का एडिशन सेम है, तुहाडे कोल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनियां बननगियां जी? 3 बननगियां। अगे चलते हैं, थर्ड कंडीशन डिस्कस करते हैं। थर्ड तुहाडे कोल किहड़ी कंडीशन बनती है? हुण तुसीं कहोगे मैम वो वाली कंडीशन जिस दे विच सर्कल एक दूसरे नूं अंदर कट करते होणगे लाइक दिस, ठीक है। तो सब तो पहला तो इस दे विच मेरे को आ वाला सेंटर है, इस दे विच मेरे को ए वाला सेंटर है, ये मेरे को ए वाला फर्स्ट रेडियस हो गया और ये मेरे को सेकेंड रेडियस हो गया। चलो जी ठीक है, हुण रेडियस का पता लग गया, रेडियस का पता लग गया तो थोड़ा जिहा हुण अगे वध लैने आ, जस्ट वेट। रेडियस का पता लग गया तो थोड़ा जिहा हुण अगे वध लैने आ, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और दोनों दे विच मैं आराम नाल डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकती हाँ। द थिंग इज़ इत्थे कितनियां टेंजेंट्स तुहाडे कोल बनदियां ने? देखो ये वालियां 2 टेंजेंट्स तो बननगियां ही बननगियां, क्योंकि ये हर जगह ते बन रही ने। इस तो इलावा होर कोई टेंजेंट तुहानूं नज़र आ रही है तो दसो, मैनूं तां नहीं आ रही। तो इत्थे नंबर ऑफ टेंजेंट्स तुहाडे कोल कितनियां हो जाणगियां? 2 हो जाणगियां। मतलब जो सर्कल्स तुहाडे कोले इंटरसैक्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं, तो उहदा मतलब की है तुहाडे कोल नंबर ऑफ टेंजेंट्स होणगियां 2। नाउ द थिंग इज़ सानूं किवें पता लगूगा? वही तो वड्डी प्रॉब्लम है। हुण फर्स्ट सर्कल तो तुसी पहला रेडियस भी कढ लिया, पहला सेंटर भी कढ लिया और सेकेंड तो तुसी सेकेंड रेडियस भी कढ लिया और सेकेंड सेंटर भी कढ लिया। द थिंग इज़ कि किवें तुहानूं पता लग्या? तो हुण तुसी इहदे विच देखो कि जो मैं रेडियस 1 दा ते रेडियस 2 दा ऐड करदी हां, वो ऑटोमैटिकली मेरे कोल की हो जांदा है? छोटा हो जांदा है। किहदे तो सॉरी ऑटोमैटिकली मेरे को की हो जाता है? वड्डा हो जाता है ए बी दे डिस्टेंस तो, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस घट कवर हो रहा है और रेडियस 1 तो रेडियस 2 ज़्यादा ने। तुसीं सोच के देखो, ये मेरे को रेडियस 1 है और ये मेरे को रेडियस 2 है, तो रेडियस 1 तो रेडियस 2 का ऐड ज़्यादा है, ए बी का डिस्टेंस घट है। समझ रही हो? तो जो मेरे को यह कंडीशन बनती है तो उस केस के विच मेरे को नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनियां होणगियां? 2 होणगियां, ठीक है। अगे चलते हैं, फोर्थ कंडीशन डिस्कस करते हैं। फोर्थ कंडीशन आपां की दसदी है कि जो एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल बनया होया होवे, मीनस टू से इत्थे किते मेरे को दूसरा सर्कल भी बनया होया लाइक दिस। हुण इहदा सेंटर किहड़ा सीगा? ऑब्वियस है ए वाला बाहर वाले सर्कल का सेंटर है और ए वाला अंदर वाले सर्कल का सेंटर है। इहदा रेडियस मेरे को कितना है? R1 लगा लो, है ना। तो यदा पूरे का अगर आप गल करिए पूरा रेडियस ये कितना आ रहा है? पूरा का पूरा R2। तो काफ़ी हद तक जो फर्क है दोनों के रेडियस के विच ही काफ़ी हद तक फर्क है। तो यदा मतलब की हो गया कि जोड़ा मेरे को ए बी का डिस्टेंस है वो मेरे को कि इक्वल आएगा? R2 माइनस R1 के इक्वल आएगा। ध्यान नाल देखो, ए बी का डिस्टेंस मेरे को कि इक्वल आ रहा है? R2 माइनस R1 के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। इट मीनस टू से तुहाडे कोल इत्थे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनियां बननगियां? जो तुहाडे कोल ये वाली कंडीशन होल्ड होंदी है तो नंबर ऑफ टेंजेंट तुहाडे कोल इक्को ही बनेगी, जिस दे विच तुहाडे कोल बस इस पॉइंट नूं दोने सर्कल टच करनगे। तो ध्यान नाल देख लो, जो दोनों का डिफरेंस सेम आता है डिस्टेंस दे तो उदों तुहाडे कोल नंबर ऑफ टेंजेंट तुहाडे कोल कितनियां होणगियां? नंबर ऑफ टेंजेंट उदों तुहाडे कोल कितनियां होणगियां जी? 1 होणगियां, ठीक है। अगे चलते हैं जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तुहाडे कोल जदों एक सर्कल के अंदर
ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਅਗੇਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ AB ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 5 ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ 3 ਕੇਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੈਨ ਲਾਸਟ 4th ਐਂਡ 5th। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ 2 ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਕਰਨੇ ਮਸਟ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਰੇਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਲਿਪਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ।